ہمارے گھر کے سامنے جمیل چاچا کا مکان تھا، جنہیں سب چاچا جمیل کہتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بے روزگار تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک کو دکان میں تبدیل کر کے کریانہ کا سامان رکھ دیا اور بے روزگاری کا حل نکالا۔ شروع میں ان کی دکان پر کم ہی گاہک آتے تھے۔ وہ ذرا خشک مزاج تھے اور محلے والوں سے بن کر نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے کوئی ان کی دکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ان کے لڑکے کا نام عادل تھا۔ اس نے میٹرک کر لیا تو جمیل چاچا نے دکان اس کے سپرد کر دی، تاکہ گلیوں میں آوارہ پھرنے کے بجائے آنکھوں کے سامنے رہے۔ یار باشی سے بہتر تھا کہ دکان کے کوٹنے سے بند جائے۔ باپ کی نسبت عادل زیادہ خوش مزاج اور ملنسار تھا۔ وہ گاہکوں کے ساتھ عزت سے بات کرتا اور پڑوسیوں سے رعایت بھی لے لیتا، جبکہ جمیل چاچا پائی پائی کو دانتوں سے پکڑنا دانش مندی جانتے تھے۔ کسی سے گھیرے کی رعایت کے بھی روادار نہ تھے۔ دکان پر ایک بورڈ بھی لگا تھا، سودا نقد اور ادھار پیار کا دشمن۔ عقل کا اندھا تو عادل بھی نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس دور میں تھا جب انسان کو خود پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے محلے کے کچھ غریب گھرانوں کے اپنے پاس کھاتے بھی کھول لیے تھے۔ اسی وجہ سے سارا محلہ عادل کی دکان سے سودا لینے لگا۔ ہمارے محلے میں کچھ معمولی تنخواہ دار سرکاری ملازم بھی رہتے تھے، جو پورے ماہ سودا ادھار پر لیتے اور جب تنخواہ آتی تو پچھلا کھاتا چکتا کر دیتے۔ یوں عادل نے رفتہ رفتہ گاہک پکے کر لیے۔ یہ کاروباری نکتہ تھا جس پر عادل کی کامیابی کا دار و مدار تھا۔ باپ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس نکتے کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ عادل کو ٹوکتا رہتا کہ میاں، اس طرح تو تم ایک دن دکان کا بٹا بٹھا دو گے۔ یہ کھاتے داری کا سلسلہ بند کرو ورنہ دکان بند کر دو۔ عادل نے جواب دیا کہ ابا، آپ نے دکان میرے سپرد کی ہے تو مجھ پر اعتماد بھی کریں، میں آپ کو کما کر دکھاؤں گا، بشرطے کہ مداخلت نہ کریں اور آرام سے گھر میں لیٹ کر حقہ پیتے رہیں، ورنہ خود چلائیں اپنی دکان۔ دکان چلانا جمیل چاچا کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے صبر کا گھونٹ پی کر معاملات بیٹے کے حوالے کر دیے۔ تنخواہ دار طبقے کے علاوہ تازہ والے بھی عادل کی دکان کے متوالے تھے۔ جب ادھار کی سہولت مانگتے عادل انکار نہ کرتا۔ یوں وہ سارے علاقے میں مقبول ہوتا گیا۔ ارد گرد کی چھوٹی دکانوں والوں کا کاروبار اس کے آگے مان پڑنے لگا۔ چند دنوں میں عادل کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی دکان کی مقبولیت بھی بڑھنے لگی۔ دکان چمک اٹھی اور کمائی میں اضافہ ہوا۔ دولت نے اس کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ ہم تازہ والے تھے۔ ابا کبھی کام پر جاتے، کبھی گھر بیٹھے رہتے۔ ماں محلے کے کپڑے سلائی کرتی اور اجرت ہفتے بعد ملتی۔ وہ بھی یکمشت نہیں، کامران بھائی ورکشاپ پر جاتے اور مالک روز شام کو چند روپے ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ آمدنی کی یہ صورت ہی تو مہینے بھر کا زیادہ سودا کیسے خریدا جا سکتا تھا؟ ماں روز تھوڑا تھوڑا سودا لینے مجھے عادل کی دکان پر بھیجتی تھی۔ دکان ہمارے گھر کے سامنے تھی۔ میں دوڑی جاتی اور جس چیز کی ضرورت ہوتی لے آتی۔ سودے کے لیے میرے دن میں 4-5 پھیرے لگ جاتے تھے۔ عادل بہت نرم لہجے میں بات کرتا۔ مجھے اس کا یہ لہجہ اچھا لگتا تھا۔ کبھی دکان پر گاہک نہ ہوتا تو ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتا۔ میٹھے چنے اور گڑ کے لڈو مفت دے دیتا۔ ان عنایتوں کی وجہ سے میں اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ میٹھے چنے منہ میں ڈال کر منہ صاف کر لیتی۔ گھر کی ریوڑی تک جاتے جاتے وہ منہ میں گھل جاتے اور میں ایسا منہ بنا لیتی جیسے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ ذرا باشعور ہو گئی تو اوڑھنی لپیٹ کر جانے لگی۔ بچپن سے مانوس تھی، اس لیے عادل کا ہنسی مذاق برا نہیں لگتا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش اخلاق اور باتونی ہو گیا تھا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتا اور سودا بھی اچھا دیتا۔ کبھی دکان بند ہوتی تو وہاں دوسری کسی قریبی دکان سے سودا منگوا لیتی، کیونکہ چولہا جلتے جلتے اچانک مٹی کا تیل ختم ہو جاتا۔ عادل کی دکان کے کھلنے کا انتظار کرنا بڑا سکون ملتا تھا۔ اماں کو خوشی ہوتی کہ وہ امیری یا غریبی کے فرق کے بغیر سب کو اپنوں کی طرح عزت دیتا تھا۔ خالہ جی کہہ کر سب کو احترام دیتا اور برے وقت کام آ جاتا۔ ماں عادل کے گھر آنے کا مطلب نہیں سمجھتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اسی وقت آتا جب ابا اور کامران بھائی گھر پر نہ ہوتے۔
दुकान पर किसी दोस्त को बिठाकर 10-15 मिनट को आ जाता और कहता कि खाला तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूँ। खाला जी जैसी चाय तुम बनाती हो अम्मा नहीं बना सकती। चाय का मजा अलग था। एक प्याली पीकर दिन भर ताजा दम रहता। मेरी भोली अम्मा जल्दी जल्दी केतली में पानी डालकर चूल्हे पर रख देती। आज ही दूध खत्म हो गया था। हिना जा भागकर श्री खाला से आध प्याली दूध तो लिया। कहना मेहमान आया है। अरे खाला रहने दो, मत जाओ। तब मैं श्री खाला से ले आई। इस दौरान आदिल मुझसे 2-4 बातें कर लेता। अब तुम दुकान पर नहीं आती हो, इतनी बड़ी हो गई हो क्या? फिर मजाक में कोई बात कहता कि मैं उसका मुंह तकती रह जाती। रफ्ता रफ्ता इसकी जो माने बातें मेरे दिल में फूल खिलाने लगी। वो कसम देकर जाता कि आज 2 मिनट के लिए दुकान पर आ जाना। तेरे लिए बादामों वाले गुड़ के लड्डू रखे हैं। गुड़ के लड्डू का बहाना था। मैं जानती थी कि वो मुझे तन्हाई में बात करना चाहता है, लेकिन दुकान पर फिर तन्हाई कहाँ थी। ग्राहक आते जाते रहते। दोपहर को अम्मा सो जाती तो मैं दरवाजे से पर्दा हटाकर झांकती। जो ही इसके सामने पहुंचती दरवाजे की ओर में बिठा देता ताकि गली से गुजरने वालों की नजर मुझ पर ना पड़े। एक रोज छत पर जा रही थी कि पांव फिसल गया और सीढ़ी से गिर पड़ी। टांग में सख्त चोट आई। दर्द से एक लम्हे के लिए भी आराम ना था। बिस्तर से ना उठ सकती थी। मुन्नी सौदा लेने गई तो आदिल ने मेरे बारे में पूछा और हिना ने बताया कि आपा के सीढ़ी से गिरने से बहुत चोट आई है, वो उठ नहीं सकती। अगले दिन वो किसी बहाने से हमारे घर आ गया। मैं खाट पर पड़ी थी। टांग को दुपट्टे से पट्टी बंधी हुई थी और दर्द से करा रही थी। अगले रोज कामरान वर्कशॉप से गाड़ी ले आया और मुझे अस्पताल ले गया। हड्डी में फ्रैक्चर आया था। प्लास्टर लगा। 2 माह बिस्तर पर पड़ी रही। इलाज का सारा खर्चा छुपके छुपके आदिल ही अम्मा को देता रहा। अम्मा ने जितने पैसे उधार मांगे इसने दिए। सब इलाज पर खर्च हो गए। मुझे यकीन आ गया कि आदिल को वाकई मुझसे मोहब्बत है, वरना कौन किसी के लिए इतनी परेशानी उठाता है। जी चाहता था कि अपना आप ही आदिल पर कुर्बान कर दूं। इसे खबर थी कि हम गरीब, उधार लौटाने के लायक नहीं, फिर भी इनकार नहीं किया। एक दिन अम्मा घर पर ना थी, हिना भी इनके साथ थी। अब्बा काम पर और कामरान वर्कशॉप गया हुआ था कि आदिल आ गया। आज इसको बिला खौफ मुझसे मुलाकात करने का मौका मिल गया। मैं भी एहसानमंदी से मरी जाती थी। सारी परेशानियां तो मुझे दे दो सहर, मैं किस लिए हूँ? अब तो मुझे शुक्रिया ना कहना। चाहने वालों को शुक्रिया की नहीं, चाहत के बदले चाहत की जरूरत होती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी माँ से रिश्ते का कहूँ तो तुम मना तो नहीं कर दोगी। मेरी क्या मजाल जो बड़ों के बीच बोलूं। लेकिन एक बात है। वो क्या? बताओ मुझे। वो ये कि मैं अभी ठीक तरह चल नहीं सकती, लंगड़ा कर चलती हूँ। फर्ज करो कि टांग ठीक ना हुई और मैं इसी तरह लंगड़ा कर चली तो क्या करोगे? क्या फिर भी तुम मुझसे शादी कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं? चाहत में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, चाहे किसी बड़े शहर से क्यों ना कराना पड़े। मेरा दिल इस पर निछावर हो गया। लगा इस मुलाकात ने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। ये मेरी खाम ख्याली थी। ये मुलाकात बाइसे राहत नहीं, मेरे लिए उम्र भर की परेशानी का सबब बन गई और तन्हाई का समर मेरे लिए मौत का परवाना बन गया। माँ को पता चला तो इसने आदिल को आड़े हाथों लिया कि क्या इसी दिन के लिए तुम हम पर इनायतें कर रहे थे? वो बोला, खाला मुझे मोहलत दे, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, साबित कदम और सच्चा हूँ। माँ ने कहा, अब मोहलत का वक्त नहीं है। वो बोला, मैं आज अभी और इसी वक्त शहर से शादी करने को तैयार हूँ। अब अपने शौहर और बेटे को मना ले। मैं अपने कहे से पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, मगर मेरे वालिदैन निकाह में नहीं बैठेंगे। अम्मा ने दबे लफ्जों अब्बा से बात की कि आदिल हमारे घर से रिश्ता लेने का आरज़ूमंद है। अब्बा ने कहा, आदिल से रिश्ता कबूल नहीं, मैं शहर की शादी अपने भाई के लड़के से करूंगा। तुम जानती हो कि बड़े भाई को जबान दे चुका हूँ। अब भाई को छोड़कर गैरों में रिश्ता करें, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? माँ रोती थी और मुझे पीटती भी थी। मैंने सोचा कि अब अपने किए की सजा खुद भुगतनी है, हल भी मुझे ही निकालना है।
आदिल की दुकान पर जाकर बता दिया कि अब्बा और भाईजान मार डालेंगे जो दोबारा हमारे घर में तुम्हारा नाम लिया। तो मुझसे चोरी छुपे निकाह कर लो, इसी में आफियत है। बात को जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त वो घबरा गया था। बहरहाल इसने निकाहनामा बनवा लिया और मुझे दस्तखत करवा कर ले गया। अगले दिन मुझे दुकान पर बुलाया। दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। वहां एक मौलवी साहब और इसके 2-3 लोग मौजूद थे। यूं मेरा इजाबो कबूल करवा कर निकाहनामे की कॉपी मुझे दे दी और कहा, अब अगर तुम्हारे अब्बा इनकार करें तो ये कागज इनको दिखा देना और जो मार पड़नी है खा लेना। मैं निकाहनामा अपने बाप को इसी वक्त दिखाऊंगा जब तुम अपने बाप को दिखा दोगी। ये मोहब्बत ना थी, मेरी आजमाइश थी। इस वाक़ये को एक माह गुजरा था कि अब्बा ने मेरी माँ से कहा कि कल बड़े भाई आएंगे, मिठाई लेकर मैं शहर का निकाह वसीम से कर रहा हूँ। तुम राजी हो के नहीं, मुझे परवाह नहीं है। निकाह भी होगा, रुखसती साल बाद होगी। माँ बेचारी गंग रह गई, लेकिन अब मैं चुप ना रह सकती थी। हिना से कहा कि ये कागज अब्बा को दिखा दो। वो निकाहनामा लेकर इनके पास गई। उन्होंने देखते ही इसके पुर्जे कर डाले और जूता उठाकर मुझ पर लपकने लगे। तभी कामरान आ गया। मुझे मारते देखा तो इनका हाथ पकड़कर रोक दिया और पूछा, क्या हुआ है अब्बा, क्यों इससे मार रहे हैं? वो बोले, इसने कागज मुझे दिया है कि देखो मैंने मर्जी का निकाह कर लिया है, तो क्या अब भी ना मारूं? कामरान ने भी जूता उठा लिया और अब्बा के मारने से पहले मुझे मारना शुरू कर दिया। खूब मारा कि नीम जान हो गई। तब अम्मा मुझ पर गिर पड़ी। बस करो, क्या मार ही डालेंगे? भाई मुझे धक्का देने लगा कि जा, निकल जा यहाँ से और चली जा इसके पास जिससे निकाह किया है। तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं रोती हुई शीरी खाला के घर चली गई। कामरान भी इसके बाद घर से निकल गया। गालिबन शोर की आवाज सुनकर आदिल दुकान बंद करके कहीं रूपोश हो गया था। इस वाक़ये के बाद वो नजर नहीं आया। 3 दिन इसकी दुकान बंद रही। कामरान इस दिन का गया, वापस घर न लौटा। अब्बा ने आरिफ ताया से हवाल बताया। उन्होंने कहा कि फौरन ये घर बेचो और इधर से कूच करो। कामरान सर फिरा है, कहीं किसी की जान ना ले ले। लड़की ने अगर निकाह कर लिया है तो इसको इसकी करनी भुगतने दो। तुम गरीब आदमी हो, तुम जो भी करेगा सूली पर तुम ही चढ़ोगे, क्योंकि गरीब की गर्दन पतली होती है। आरिफ ताया इसी वक्त अब्बा हिना और अम्मा को अपने घर ले गए। मकान को ताला लगा दिया। फिर कामरान की वर्कशॉप पर गए। वो वहां मिल गया। इसे समझाया बुझाया और इसे भी घर ले गए। बाद में इसे सऊदी अरब भिजवा दिया। अब मैं शीरी खाला के रहमो करम पर रह गई। वो कब तक मुझे रखती? इन्होंने जाकर आदिल के माँ बाप से बात की और कहा कि तुम्हारे बेटे की करतूत देखो कि मेरे भांजे का दोस्त बनकर इसको धोखा दिया और घर का बेदी बनकर दुश्मन हो गया। अब अगर निकाह किया है तो आपके इल्म में भी होगा। शहर मेरे पास है, इसको बहू बनाकर ले जाओ। इसके माँ बाप इसे मेरे पास छोड़ गए हैं। जमील चाचा ये सुनकर हैरान हो गए। बोले, ये क्या खराफात है? आदिल लाहौर दुकान का सामान लेने गया हुआ है, इसे आने दो, फिर बात करूंगा। अभी वावेला ना मचाओ। बेचारी शीरी खाला बेटे के पास रहती थी। वो बेटे और बहू से डरती थी। हम सफर खालों ने अक्लमंदी से काम लिया और सब घर वालों से कहा कि शहर अब हमारी पनाह में आ गई है, तुम इसको परेशान मत करो। गलती इंसान से हो जाती है। आदिल को आ जाने दो, मैं खुद इससे बात करूंगा। चंद रोज बाद आदिल आ गया। इसे मालूम हो गया था कि मेरे माँ बाप घर छोड़कर जा चुके हैं। सफर खालू ने बात की। इसने निकाहनामे की दूसरी कॉपी इन्हें दे दी और कहा कि मैं इस निकाह से इनकारी नहीं, मगर अब्बा सख्त मिजाज हैं। इनको मनाने में कुछ वक्त लगेगा। आप जो चाहेंगे तसल्ली कर दूंगा। कोर्ट भी चलकर निकाह कंफर्म करा लेंगे। फिलहाल मेरे माँ बाप शहर को घर ना लाने देंगे। मैं साल भर शीरी खाला के घर रही। सफर खालू वली बने और कोर्ट से निकाह कंफर्म कर लिया, लेकिन सास ससुर ने मुझे घर में घुसने ना दिया और ना वालिदैन ने कबूल किया। वो घर फरोख करके किसी और मोहल्ले में जा बसे। अलबत्ता आदिल मुझे खर्चा भिजवाता रहा। 1 साल बाद सफर खालू का इंतकाल हो गया। शीरी खाला ने अम्मा से राब्ता किया कि अपनी बेटी को ले जाओ।
बहू और बेटा इसको अब रखने पर राजी नहीं है। मेरा जोर शोहर तक था। वो चल बसे, मैं बेटी की मोहताज हूँ। कामरान सऊदीया में था। अम्मा ने किसी तौर अब्बा को समझा बुझा लिया, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। वो मुझे आकर ले गए, मगर इस शर्त पर कि आदिल कभी इनके घर में कदम ना रखेगा। आदिल की शादी इसके वालिद ने अपनी भांजी सबा से कर दी थी। 15 बरस इसी तरह गुजर गए। अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। आरिफ ताया ने मेरी जगह हिना को अपनी बहू बना लिया। अब्बा की वफात के बाद अम्मा ने मेरा साथ ना छोड़ा। मेहनत मजदूरी करके मेरी बच्ची को परवान चढ़ाया, यहाँ तक कि वो 15 बरस की हो गई। तब एक रोज आदिल की माँ मोहल्ले की 2 औरतों के हमरा हमारे घर आई और निकाहनामा दिखाकर बोली कि बेशक मेरे बेटे ने शहर से निकाह किया था और ये निकाहनामा मौजूद है। अब मैं अपनी पोती को लेने आई हूँ। आदिल की शादी की थी, इसकी बीवी बांझ निकली। इसकी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहू और पोती को मेरे साथ भेज दें। माँ ने कहा इस वक्त तुमने हमको धुतकार दिया था, अब हम तुमको धुतकारते हैं। हाँ, आदिल को भेज देना तो बात कर लूंगी। अगले दिन आदिल आ गया। कहा कि खाला मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी रोशनी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, ताकि मैं इसको बाप का नाम दे सकूं। माँ ने मेरी रोशनी का हाथ पकड़कर इसके हाथ में दे दिया और कहा कि इसीलिए तुमको बुलाया था। हम गरीब लोग हैं, जो तुमने किया नहीं चाहते वही तुम्हारी बेटी के साथ हो। तुम इसको ले जाओ, मगर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ना दूंगी। तुमने छुप कर निकाह किया और फिर शहर को कबूल ना किया, बेआसरा छोड़ दिया। इतने बरस बाद अब इसकी याद आई है। अब क्या लेने आए हो? मुझे भी कहा कि शहर, अगर तुम मेरी बेटी है तो हरगिज मुझे छोड़कर इसके साथ मत जाना। जब मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हें नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरा बेटा मुझको छोड़कर चला गया, अब तुम मुझे बुढ़ापे में अकेला कर कर जाओगी। जानती हो, ये लोग सिर्फ रोशनी को लेना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। इसने तुमसे बेवफाई की, हमसे भी धोखा किया। अगर तुम इनके साथ चली गई तो याद रखना, ये तुमको बहुत दुख देंगे। मैंने माँ की बात मान ली। दिल पर पत्थर रखकर बेटी आदिल को सौंप दी। मेरा दिल भी ना चाहता था कि इन लोगों के साथ जाऊं, जिन्होंने इस वक्त मुझे ठुकरा दिया था जब मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। आज ना माँ इस दुनिया में है और ना आदिल, और इसके माँ बाप रहे। वफात से कबल आदिल ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी। अब यही बच्ची ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो अम्मा की वफात के बाद मुझे मिन्नत समाजत करके अपने साथ ले आई है। दामाद बेटे जैसा है कि माँ जैसी इज्जत देता है। वो एक गैर शख्स था, मगर अपनों से बढ़कर है, और बुढ़ापे में दरबदर होने से बचाया। अल्लाह ताला ने उम्र के इस आखिरी मंजिल में नेक दामाद की सूरत में मेरे सब्र का इनाम दे दिया।